जय राधा माधव पुनीत बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव पुनीत बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव पुनीत बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव पुनीत बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनंदन जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृत्ताचार्य His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON BVD founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Pariyujnacharya Astotara Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Samaved Gaura Bhaktavanta ki Jai. Nitai Gaur Premanandi All glories to Samad Gauri All glories to Samad Gauri All glories to Samad Gauri All glories to Shri Guru and Shri Gauranga.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Nashtaprayeshu Bhattreshu. Nashtaprayeshu Bhattreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Hare Krishna. Hare Krishna. आज हम श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद, उसमें से चौथा अध्याय में से 10वां नंबर जो श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। विचिकित्सितम् एतन्मे भवेतु भगवान् यतः शब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिश्च भवान् ततो। Translation: kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in the Vedic literature and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord and are therefore as good as the personality of Godhead. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the Brahma Samhita it is said that the Supreme Absolute Truth Govinda, the personality of Godhead, although one without a second, is infallibly expanded by innumerable forms, not different from one another. And although He is the original person, He is still ever young, with permanent youthful energy. It is very difficult to know simply by learning the transcendental science of the Vedas, but He is very easily realized by His pure devotees. The expansions of the different forms of the Lord, as from Krishna to Baladev to Sankarshan, from Sankarshan to Vasudev, from Vasudev to Anirudh, from Anirudh to Pradyumna, and then again to the second Sankarshan, and from him to Narayana Purusha Avtaras, and innumerable other forms which are compared to the constant flowing to the uncountable waves of river, are all one and the same. They are like lamps of equal power which kindle from one lamp to another. That is the transcendental potency of the Lord. The Vedas say that He is so complete that even though the whole complete identity emanates from Him, He still remains the same complete whole. Purnasya param adhaya purnam evavashichyate. As such, there is no validity in material conception of the Lord produced by mental speculator. Thus, He remains always a mystery for the mundane scholar, even if he is vastly learned in the Vedic literatures. Therefore, the Lord is beyond the limit of conception for mundane learned scholars, philosophers, or scientists. He is easily understandable for a pure devotee, because the Lord declares in the Bhagavad Gita that after surpassing the stage of knowledge, when one is able to engage in the devotional service of the Lord, then only one can know the true nature of the Lord. One cannot have a clear conception of the Lord or His body, name, form, attributes, pastimes, etc., unless one is engaged in His transcendental loving service. The statement of the Bhagavad Gita that one must first of all surrender unto the Lord, be free from all other engagements, means that one must become a pure, unconditional devotee to the Lord. Only then can one know Him by the strength of devotional service. Maharaj Parikshit admitted in the previous verse that the Lord is inconceivable even for the greatest learned scholars. Why then should He be again request
Sukadeva Goswami to clarify his insufficient knowledge about the Lord. The reason is clear. Not only was Sukadeva Goswami vastly learned in the Vedic literature, but he was also a great self-realized soul and a powerful devotee of the Lord. A powerful devotee of the Lord is by the grace of the Lord more than the Lord himself. The personality of Goddess Sri Ramachandra attempted to bridge the Indian Ocean to reach the island of Lanka. But Sri Hanumanji, the unalloyed devotee of the personality of Godhead, could cross the ocean simply by jumping over it. The Lord is so merciful upon his pure devotee that he presents his beloved devotee as more powerful than himself. The Lord expressed himself to be unable to save Durvas Muni, although Muni was so powerful that he could reach the Lord directly under the material condition. But Durvas Muni was saved by Maharaj Ambarish, a devotee of the Lord. Therefore, not only is the devotee of the Lord more powerful than the Lord, but also worship of the devotee is considered more effective than the direct worship of the Lord. Mat Bhakta Puja Vita. Hare Krishna. ये हम थोड़ा तात्पर्य के थोड़ा भाग देते हैं, इसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणानुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only the vastly learned in the Vedic literature and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord, and are therefore so good as a personality of Godhead.
हरे कृष्ण। आज हम पहले मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से दिलपूर्वक आपका स्वागत करता हूँ। और सभी भक्तों के आप लोग यहाँ पे इकट्ठा होके कृष्ण भक्ति और उनके श्रवण कीर्तन के बारे में चर्चा करने के आए हैं। ये बहुत उत्साह पूर्वक आप आए हैं। ये सबसे बड़ा एक बता दें कि आपकी योग्यता है और बाकी लोगों के भी प्रचार है कि इतने सारे चीज़ों में भौतिक दुनिया में अभी की श्रृंखला में जो लोग ज़्यादा रुचि नहीं रखते भक्ति में, पर वो सभी त्याग करके आप कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इट इज़ वेरी एग्जाम्पलरी। और कार्तिक महीने का आज लास्ट, भगवान की दया से आज हमें वो अवसर मिल रहा है, क्योंकि पता नहीं ये समय हमें वापस आएगा कि नहीं। इतने सारे भक्तों के बीच में बैठ के भगवान को ये कार्तिक महीने की आज समाप्ति है और ये उनकी असीम कृपा है कि हमें ये महीना उन्होंने दिया ताकि हम भगवान को दीप देकर उनके बता दें कि भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस ज़्यादा रखते नहीं है भगवान, सिर्फ इसलिए बता दें कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्। एक छोटा सा सेवा, पत्रम पुष्पम फलम तैलम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। लॉर्ड डजंट पुट मच कंडीशंस। इसलिए बताया कि उनको पता भी है इस कलयुग में सब बताते कि पासिंग मार्क्स वाले ही है, इसलिए बोलते थे ज़्यादा तुम्हारे लिए तपस्या के लिए अगर कुछ नहीं हो तो एक दीप उठा के मेरे इसे अर्पण कर दो। दीप सिर्फ जस्ट ऑफर अ लैम्प, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो आज वो हमें अवसर मिला है कि भगवान की दया से हमें ये, इसलिए मैं ज़्यादा कथा तो लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों ने इतना सारा अरेंजमेंट किया है ताकि सभी भक्तों को ये कार्तिक के जो लास्ट दिन है, भीष्म पंचक का आज लास्ट है और आज चंद्र ग्रहण भी था। अभी चंद्र ग्रहण होने के बाद भगवान की कथा के बारे में सुनना पता नहीं बहुत ऑस्पिशियस है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा समय आप जैसे ताकि आप बाकी इसमें श्रवण कीर्तन में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जो कथा आगे बढ़ाते सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो जैसे श्रवण कीर्तन का प्रगति होता है और अभी सुखदेव गोस्वामी बताते कि भगवान की लीला शुरुआत करने से पहले परीक्षित महाराज एक शब्द बोलते हैं, क्यों मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मैं आपसे क्यों सुनना चाहता हूं। ये नहीं कि आप बड़े स्कॉलर हो, बहुत विद्वांस हो, बड़े पंडित हो, आप सभी शास्त्रों में निपुण हो, ये तो बाकी सभी बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हो। दिस इज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि आप भगवान के एक शुद्ध भक्त हो और भगवान के लिए प्रिय हो, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी हम ये जो भागवत की जो कथा है या भगवान की श्रवण या कथा या उनकी चर्चा ऐसी व्यक्ति से सुनना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ उदाहरण में डालता है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो व्यक्ति अपने खुद के जीवन में डालता है उसमें उतना बताते कि पोटेंसी, उसके पास उतनी शक्ति है, उसमें उतनी शुद्धता है और वो जब वो व्यक्ति
बोलता है, जब वो कीर्तन करता है, जो उसके बारे में उससे सुनते हैं, तो तभी वो हृदय परिवर्तन होता है। नहीं तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो व्यक्ति के पास हम किसी व्यक्ति से जाके सुनते हैं, तो वो बताते कि ये जो भगवान की कथा एक अमृत नहीं है, जैसे बोलते कि एक शुद्ध दूध की जैसे है। पर अगर वो शुद्ध दूध कोई जहरीली पता नहीं सांप का जो जीभ लग जाता है, तो वो दूध पीने के लायक नहीं रहता है, उसको हम नहीं ले सकते हैं। We cannot drink। फिर अगर कोई सोचे अगर आपने दूध रखा है और आप आने से पहले कोई सांप का जो उसने जाके उसमें कुछ चक भी लिया होगा, या कोई इंसेक्ट या कोई भी गिर गया, तो आप तुरंत बोले अरे ये पियो मत, क्यों? वो सांप ने टच किया। तो उसी तरह कोई जो व्यक्ति अपने जीवन में उतना प्रयास नहीं करता है, वो जो भक्ति में बोलता है, वो खुद ही जीवन में प्रयास नहीं करता है, डालता नहीं है, वो व्यक्ति से सुनने का मतलब इट इज लाइक ड्रिंकिंग द पॉइजन्ड मिल्क। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बताते कि मैं नहीं है कि आपसे सुनता हो, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, यू आर फॉलोइंग व्हाट यू प्रैक्टिस। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला दिया था, आपको मैंने दिया था। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लास्ट टाइम मुझे जब अवसर मिला था, तो मैंने एक दो प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं कि दो चीज बस हो जाता है एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनने के लिए, यू कैन इजीली प्रोग्रेस। एक है कि अगर आप भगवान के भक्तों के गर्भ में जन्म लिए हो, दैट इज वेरी बिग चांस। और दूसरा है अगर आपको एक शुद्ध भक्त का उनका शरणागति मिला, उनको आप गुरु के रूप से एक गुरु की बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का आपको दर्शन मिल गया, उनके शरणागति में आ गए, देन आप भक्ति में एकदम तुरंत प्रगति करते हो। उसी तरह ये जो मैं स्टेटमेंट आज बताया, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते, आप शुद्ध भक्त हो इसलिए मैं सुन रहा हूं। अभी मैंने जब ये तात्पर्य पढ़ा, तो अगर आपने सुना होगा, फिर ये मेरे लिए बताता हूं। इसमें प्रभुपाद बहुत बड़ा वाक्य बताते, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये अगर आप सुनेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे इन्होंने कैसे बताया है। यहाँ पे पर्पट के सेकंड पैराग्राफ में प्रॉपर बताते हैं, जैसे महाराज परीक्षित admitted in the previous verse that the Lord is inconceivable even for the greatest learned scholars. Why then should he again request Sukadeva Goswami to clarify his insufficient knowledge about the Lord? The reason is clear. Not only was Sukadeva Goswami vastly learned in Vedic literature, but he was also a self-realized soul and a powerful devotee of the Lord. A powerful devotee of the Lord is by the grace of the Lord more than the Lord himself. A powerful devotee of the Lord is more powerful than the Lord himself. इसका तो बात समझ क्या है? एक शुद्ध भक्त भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है। अभी आप बोलेंगे ये क्या है बाबू जी, आप क्या बोल क्या रहे हो? एक शुद्ध भक्त भगवान से पावरफुल? ये आप नास्तिक व्याधि तो नहीं प्रचार कर रहे हो, या कोई मायावादी प्रचार तो नहीं कर रहे हो कि भगवान और भक्त भगवान से भी उत्तम है? कल तो आपने ये बोल दिया कि भगवान से उत्तम है, कल तो आप बोलेंगे भक्ति भगवान हो गया। यू आर स्पीकिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन में जैसे प्रॉपर बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताते हैं, जैसे श्रीनिवास आचार्य को रामायण कथा चल रहा है और अभी उनका सुंदरकांड चल रहा है, अब सॉरी किष्किंधा कांड चल रहा है, और ज्यादा इनका गुणगान हो सकता है बजरंग बली जी का। देखिए ये कोइंसिडेंस है,
श्रीनिवास आचार्य बोलोगे कथा भागवत की कथा, ये हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था, ऑफ कोर्स भगवान की कृपा है। यहाँ पे प्रॉपर क्लियरली बताते हैं, यही स्टेटमेंट है, भगवान श्री रामचंद्र लॉर्ड रामा परम देवोत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर उनकी लीला में बजरंग बली जी को बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण यहाँ बताते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब उनको 7 समुद्र जो बताते कि समुद्र पार करना था, उनको इतना प्रयास करना पड़ा एक ब्रिज बांधने के लिए, टू बिल्ड अ ब्रिज। पर वही हनुमान जी एक छलांग में सीधा उड़ी मार दिए 1000 योजना। इसका मतलब क्या हुआ कि राम मतलब पीछे हुए और हनुमान जी बहुत, ये कैसे हुआ? दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज, द devotee by the grace of the Lord becomes more powerful than the Lord. भगवान चाहते हैं मेरा भक्त मुझसे भी उत्तम होना चाहिए। ये कंपटीशन है भगवान और भक्तों का बीच। कौन भक्त कभी अगर आप जाके हनुमान जी के सामने उनके गुणगान, आप ही भगवान हो, आप ही ये हो, अगर सचमुच बात निकले तो समझो वो कभी सहन भी नहीं कर पाएंगे, वो ही विल नेवर टॉलरेट। चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल जब आए थे उस अंदर में, जब शिवास आंगन में वो एक भक्त के रूप में आए थे, पर जब उनको कोई पता थे महाप्रभु आप ही सर्वोत्तम पुरुष हो, आप ही सब कुछ हो, सभी अवतारों का अवतार हो, तभी वो कान रखते थे, स्टॉप इट, विष्णु विष्णु विष्णु। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में लोगों को ख्याति की बहुत जरूरत है। जरा सा थोड़ा प्रशंसा मिल गया तो बोलते हैं मैं तो बड़ा फेमस हो गया। अगर ये ख्याति के लिए कल अगर मैं खुद के भगवान अपने जीवन में खुद बता दे, महाप्रभु श्री चैतन्य खुद अपने जीवन नेवर टॉलरेट, वो कुछ भी सहन कर सकते, पर मुझे भगवान मत बोलो, डोंट से दिस। परम देवोत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है, वो खुद के जीवन में बताना चाहते, पर लॉर्ड वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी। भगवान चाहते हैं मेरे भक्त का गुणगान होना चाहिए, इसलिए कभी कभी भगवान नीचे आ जाते और बोलते तुम पढ़ो, आई वॉन्ट टू शो दैट यू आर मोर पावरफुल देन मी। मेरा इसलिए बताते ना, यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम पंगुम लंघयते गुरु पंगुम लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। भगवान और गुरु का आशीर्वाद है, एनीवन कैन बिकम पावरफुल। तो अगर कोई लंगड़ा भी हो वो पर्वत पार कर सकता है, और जो मुख है जो बोल नहीं सकता ही कैन स्पीक एलोक्वेंटली। इसलिए यहाँ पे भगवान चाहते हैं कि माय डिवोटी शुड बी मोर ग्लोरीफाइड। और सिंपल प्रोसेस, आज ये फॉर्मूला है, रिमेंबर, ये अगर फॉर्मूला आप फॉलो किए आपको कृष्ण मिलना ही मिलना है। कोई चाहते हैं वांट टू नो द फॉर्मूला? अगर ये फॉर्मूला फॉलो किए रियली डीप इन द हार्ट, आपको कंप्लीट कन्विक्शन होना ही चाहिए। ये अगर आपका हृदय से, मुख से नहीं, अगर आपको कंप्लीट कन्विक्शन, ये अगर आपको सचमुच बताते कि दृढ़ विश्वास हो के अगर आप फॉलो किए, आपको कृष्ण मिलना ही है मिलना। व्हाट इज द फॉर्मूला? यहां पे प्रॉपर बताते हैं, मत भक्त पूजता। मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त है इज नॉट माई डिवोटी, वन इज माई डिवोटीज डिवोटी, ही इज माई डिवोटी।
जो मेरा भक्त है मैं उनको देखता भी नहीं हूं, पर जो मेरा भक्तों का भक्त है आई गिव इन कृष्णा। अगर ये कन्विक्शन, ये स्टेटमेंट आपके हृदय में है that Krishna, I want to become the servant of the devotees, 110% you will get Krishna। ये गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है, ये सिर्फ बुक वाली बात नहीं है। You should be convinced। इसके लिए आप प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना ही चाहिए। इसलिए ये स्टेटमेंट बताया है प्रॉब्लम 1 why Sukadeva, because you are a pure devotee, मुझे पता है, I don't want to know, मुझे कृष्ण के बारे में पता नहीं, पर मैं आपका भक्त बन गया 110% I become a devotee। अगर ये हमारे पास मूड है, अगर हमारे पास ये प्रज्ञा है, तो हम सभी व्यक्ति को भक्त देखेंगे और हम अपने आप को तुच्छ समझेंगे, और तभी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति हमें घृणा नहीं देगा। बिकॉज टू सर्व अ डिवोटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये अगर हमारे पास गोल है, हमारा दिन रात इच्छा है, तो तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण। दक्षिण भारत में बहुत साल पहले, इवन 500 साल पहले, उस समय श्री वैष्णव के जब बता दें कि बहुत प्रचार होता था। श्रीपाद रामानुजाचार्य के उस समय की बात है, इवन बिफोर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उनमें से 2 चीज को लिए थे, एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है शुद्ध बता दें कि प्योर डिवोशनल सर्विस। दूसरा एक है कंप्लीटली विदाउट एनी मटेरियल टेंज। महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा श्री वैष्णव में। ये उस समय की बात है, आप लोग सुने होंगे, दक्षिण भारत में भगवान वरदराज का जो अर्च विग्रह है, वरदराजा, कांचीपुरम जगह में भगवान चतुर्भुज रूप में, वरदराज के रूप में निवास, आज भी निवास करते हैं। और बहुत सारे, जब आई थिंक 2-3 साल पहले एक ऐसा ये प्रोग्राम आयोजन किए थे कि भगवान के वो जो अर्च विग्रह जो उन्होंने इसमें रखे थे सरोवर से, उन्होंने वो की बता दें कि 100 साल के बाद वो जाता है, समथिंग 40 इयर्स के बाद निकलता है, और उनका दर्शन वही कांचीपुरम में भगवान वरदराज का हमेशा बहुत सारे वैष्णव लोगों ने पूजा किया था। वरदराजा, उनमें से श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक बड़े, एक गुरु कांचीपूर्ण, वो एक बड़े शुद्ध भक्त थे। बता दें कि भगवान के प्रति इतनी लगाव था, उनकी इतनी लगाव था, इतना अटैचमेंट था, आसक्ति था कि भगवान की सेवा के लिए वो एकदम तत्पर रहते थे। और उनका एक ही सेवा था, भगवान को चावल डालना, ऑफरिंग द चावल टू द लॉर्ड, सीधा कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग इन वन पोजीशन, सोचिए उठना जैसे हनुमान जी की जैसे तत्पर, नॉट इवन वेटिंग, कभी वो अवसर मिला भगवान को चावल का। ये सेवा के वजह से ये कंटिन्यूअसली कितने सालों साल कांचीपुर्ण भगवान वरदराज को चावल करते 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 इतने ध्यान पूर्वक और इतने भक्ति से करते थे कि थोड़े समय में भगवान वरदराज उनको कृपा बरसाए। और हमेशा जब ये सेवा करते थे कांचीपुर्ण, भगवान उनके साथ वार्तालाप करने लगे। सोचिए अगर आप हनुमान जी के सामने, ऑफकोर्स आप लोगों को हुआ होगा, पर मैं बोल रहा हूँ, सोचिए आप भगवान के सामने आके बैठ के हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी खुद बोलने बात करने लगे, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम्हारा, कैसे तुम्हारी जिंदगी। वैसा वार्तालाप भगवान की अर्च विग्रह से कांचीपूर्ण करने लगे। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये फैक्ट है, ये हुआ चीज है। तो रोज जब भगवान कांचीपूर्ण वरदराज को कांचीपूर्ण सेवा कर रहे थे, भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो पूरे कांचीपुरम में सब लोगों को पता चला भगवान कांचीपुरम के साथ एकदम वार्तालाप कर रहे हैं, हमेशा बात करते हैं। वो इतने बड़े, सबको पता था वो बड़े शुद्ध भक्त हैं, उनकी योग्यता भी है भगवान के साथ बात करें।
तो सोच लीजिए अगर हमें कोई ऐसा पता चले ये वो भगवान के साथ बात कर दिया भगवान के साथ, तो क्या होता है नॉर्मली, क्या साइकोलॉजी, भगवान के साथ बात कर रहा है, चलो जाके उनको पूछता हूँ, कुछ तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे। हाँ, भगवान के साथ मेरा एक प्रॉब्लम है, जब पूछ लो ना। ऑफकोर्स वो समय वैसे श्री वैष्णव के भक्त लोग भी ऐसे थे कि वो कभी ऐसे भौतिक के लिए नहीं पूछते थे, पर अगर जीवन में कभी भक्ति में कोई हानिकारक हो या कुछ भी तकलीफ आ जाते थे, वो पूछते थे भक्ति में जाप बराबर नहीं कर पा रहा हो, ये नहीं कर पा रहा जरा, तो लोग आपके कांचीपुर से पूछने लगे, मेरा ये निवेदन वरदराज को बता देंगे, मेरे ये निवेदन बता पाएंगे, प्लीज कैसे भी पूछ लीजिए। तो कांचीपुर ने एकदम नम्रता पूर्वक, देखिए इसमें कभी कभी अहंकार आ जाता है, हाँ नहीं कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास होता है एक्सेस है भगवान। नो, वेरी हम्बल, ठीक है आप बोल रहे तो आई एम लाइक अ पोस्टमैन, मैं जाके पूछ लेता हूँ भगवान से। तो लोग आके उनसे बोलते थे, एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य वो खुद ही बोलते पूछते हैं, उनके गुरु हैं कांचीपुर ने, इज अ गुरु, गुरुदेव आप वरदराज से बात कर सकते हो, मेरा एक निवेदन आप पूछ सकते हो। बोले क्या है? जी क्या मुझे कोई चांस है इस जन्म में वैकुंठ जाने के लिए? मैं ये जन्म में भगवान के वैकुंठ परम धाम वही जो गोलोक वृंदावन जो वैकुंठ जो किसी को भी प्राप्त करे, मुझे कोई चांस है इस जन्म में वैकुंठ जाने के लिए? ये आप जरा पूछ सकते हैं वरदराज से, भगवान वरदराज। बोले अवश्य, मैं एक आपके जैसे मैं आपका जो मैसेज भगवान को पहुंचा दूंगा, मेरे पास कोई योग्यता नहीं पहुंचा, आप पूछे तो मैं जाके पूछूंगा। तो दूसरे दिन जब वो चामर कर रहे थे तो पूछे, आपका एक भक्त रामानुजा, उनका एक प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि इसी जीवन में वो वैकुंठ में आपका दर्शन ले सकता है? भगवान वो आपसे आपका इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। तो तुरंत वरदराज बोलते 110% रामानुजा विल सी मी, रामानुजा इस जन्म में ही मेरे धाम में आने वाला है, बता दो उनकी। ठीक है, तब ये क्या होता है, ये कांचीपुर जो चामर कर रहे हैं ना, उनके हृदय में डाउट आ जाता है, क्या तो उनके बारे में तो पूछा, मेरे बारे में क्या क्या मेरे वैकुंठ में जाऊंगा? तो चामर कर रहे थे, तो वो भगवान देखते हैं, कांचीपुर, हाँ बोलिए भगवान क्या हुआ, तुम्हें क्या शंका क्या है, व्हाट इज योर डाउट? नहीं कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं, पूछो नहीं, व्हाट इज? तो एकदम पता नहीं हिचकिचा के पूछते, भगवान रामानुजाचार्य तो बराबर है, वो तो पता नहीं इज कंप्लीट निष्कर्म, उनके पास हृदय में कोई कलश नहीं है, वो तो बराबर है वो भगवान, पर मुझे से तुच्छ व्यक्ति क्या मैं वैकुंठ में जा सकता हूँ? तो भगवान उनकी आंखें न झुकती है, और झुकने के बाद बोलते सॉरी कांचीपुर, ये प्रश्न का उत्तर तुम्हारे लिए है नो, तुम सेवा कर रहे हो पर तुम्हें इस जन्म में वैकुंठ में एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि क्यों? यू आर सर्विंग मी, मुझे मेरा सेवा कर रहे हो, यू आर नॉट सर्विंग माई डिवोटीज, मेरे भक्तों का सेवा नहीं कर रहे हो। डोंट थिंक दैट तुम मेरा सेवा किया तो तुम्हारा एक राइटफुल क्लेम बनता है भगवान में धाम में एंटर करना। टिल द टाइम यू आर नॉट सर्व्ड अ प्योर डिवोटी, देयर इज नो चांस टू गो इनटू वैकुंठा। इसलिए आंसर इज नो। कांचीपुर ना, तुम कितना भी बड़े सेवा किए, चावल कितने सालों से साल करते रहो, पर जब तक तुम्हें एक भक्त का तुमने सेवा नहीं किया, देयर इज नो चांस। बोलते ना, देयर इज नो चांस। एक वर्स है, व्हाट इज दैट वर्स? सेज इसमें महत सेवा द्वारा अहुर विमुक्ते। जब तक एक
शुद्ध भक्त का, एक भक्तों का सेवा नहीं करते, देयर इज नो चांस। मान सेवा द्वारा सिर्फ यू आर सर्विंग मी, यू आर नॉट सर्व्ड अ प्योर डिवोटी। आप भक्तों का सेवा नहीं किए तो तुरंत वो चावल ऊपर था, वो सीधा नीचे आ जाता है, तो उधर ही दरवाजे के ऊपर रख देते। सोचिए अगर आपको दिया तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में भगवान बालाजी को बोलते ना जड़ी गड्डी, चलो तो 1 सेकंड का भी नहीं मिलता है, पर अगर वहां पे आपको सेवा दिया घंटे घंटे आप छावर कर, कौन वो सेवा छोड़ेगा? Who is going to leave that सेवा? तिरुपति तिरुमला देवस्थान वेंकटरमण का एक दर्शन मिलता है, उसको इतना 2 सेकंड करता है। अगर आपको बोला आज से आप घंटे भगवान बालाजी का सेवा आप छोड़ेंगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं छोड़ू, अरे इतने साल से मिल रहा है। सोचिए एसेंस, वैदिक धर्म का एसेंस इज टू सर्व अ डिवोटी। तुरंत वो चावल लेके नीचे रख देते, मुंह सौंप। अभी देखिए वो निकल जाते वहां से, निकलने के बाद जाके पूछते, मुझे हर भक्तों से घर पे जाके पूछते प्लीज मुझे एक आपका सेवा करने तो दो, सेवा तो करने दो। तो क्या भक्तों पूरे कांचीपुरम में सबको पता है व्हाट इज कांचीपुरम्स पोजीशन। कांचीपुरम कौन है? उनके लेवल में कोई नहीं है, उनके पास निष्कलंक है, वो कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, उनके हृदय में कोई कलमश नहीं है, वो एक भक्तों में शिरोमणि है। वैसे शिरोमणि को थोड़ी हम घर पे एक नौकर के साथ बोलते प्रभु कुछ भी हो हमको नरक में नहीं जाना है, प्लीज ऐसा मत पूछिए। कभी कभी देखिए यही होता है, कभी कभी अरे थोड़ा तो प्रशंसा आ जाता है, प्रभु आप इतने महान भक्त हो, आपके से हम तो आपके, तो सभी घर पे ऐसे ही जाके पूछ रहे थे मुझे आपको सेवा नहीं, प्लीज आप ऐसा मत पूछिए। कांचीपुरम सेक्रेट ये देश में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कोई सेवा नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना जो सैफरन, ये जो संन्यास का वेश है उसको निकाल देते हैं और एक भिखारी का ड्रेस पहन लेते हैं, कोई पहचान ही नहीं पाता। और उसके बाद एक गोष्ठी पूर्ण बोल के एक भक्त थे, उनके घर पे जाके ग्वाला के जैसे सेवा करते हैं। बोले ग्वाला हूं मैं कोई आपके लिए काम करते रहूंगा, आप काम कर। और जाके उनके बता दे कि वो कौशल में जाके वहां पे जाके सेवा कर रहे थे। गोष्ठीपूर्ण को पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि ये छुपा देते पूरे, अपने मुंह का सब छिपा के, अपना संन्यास वेश सब हटा के। सिर्फ उनको पता था अगर मुझे भगवान के वैकुंठ धाम में प्रयास करना है, सो देन ओनली चांस आई हैव टू सर्व प्योर डिवोटी। और ऐसे ही करते करते 6 महीने तक उनको पता नहीं चला। और एक दिन जब उन्हें गोष्ठीपूर्ण देखे तो बाद में उनको पता चला, एक दिन रात में एकदम बरसात को, कहानी को मैं शॉर्ट करता हूँ, और तभी पता चला अरे ये तो कांचीपुरम है। बोले हाँ यहाँ पे कांचीपुरम नहीं, ये भरतराज का आज्ञा था, इफ आई हैव टू गेट इन वैकुंठ आई हैव टू सर्व प्योर डिवोटी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। गोपी पाद पदकमलयोर दास दासानुदास। अगर ये मिथ्या अहंकार को सामने रख के सिर्फ बोले प्रभु मैं आपका दास हूं, दैट इज नॉट इट। आर यू रेडी टू सर्व द प्योर डिवोटीज? एक भक्तों का जूते के धूल बनने के लिए तैयार, एनीथिंग, मान अपमान हो, कुछ भी हो, एट एनीथिंग फॉल्स मिथ्या अहंकार को हटा के आई नो दैट आई एम नॉट अ सर्वेंट। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं इफ ही सेज इज कृष्णा's devotee आई डोंट हैव टाइम। अगर वो बोला मैं भक्तों का भक्त हूं, देन यू प्लीज कॉल हिम। ये एक नियम, ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अगर यू रियली वांट टू सी कृष्णा इन दिस लाइफटाइम, यू हैव टू बी सर्व अ प्योर डिवोटी। मैं और एक कहानी बोल के ये कथा को समाप्त करूं, एसेंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने यही श्रीमद् भागवतम में सुने होंगे, आगे बढ़ते बढ़ते कहानी हम आएंगे अगर भगवान की दया तो कहानी अम्बरीश महाराज की कहानी सुने होंगे आप लोग। अम्बरीश महाराज बता दें कि वो सवाई मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरि मंदिर मार्जन शूटिंग चकार अच्युता सब करोदय। उनका सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही उपयोग करते थे। वही अम्बरीश महाराज जब एक बार एकादशी पालन करते हैं, उस समय
दुर्वास मुनि आ जाते, दुर्वास मुनि। अभी दुर्वास मुनि तो मुनियों में श्रेष्ठ है, और तभी वो आके उनके सामने आ जाते दुर्वास मुनि और बोलते कि एकादशी मुझे तोड़ना है, आप थोड़ा समय रुक जाइए, मैं स्नान करके आता हूँ। वो टेस्ट कर देख रहे थे, अम्बरीश महाराज का टेस्ट। तो अम्बरीश महाराज, क्योंकि साधु महाराज इसमें महल में आए तो उनको सम्मान तो देना चाहिए, और इसलिए वो रुक जाते हैं। पर उनका जो समय है, एकादशी तोड़ने का समय, वो निकल रहा था। तो बाकी साधु संतों से पूछ के वो पूछने की क्या करना चाहिए, तो बोले आप जल का सेवन कर लीजिए, जल का सेवन कर लीजिए, क्योंकि जल का सेवन करना मतलब एकादशी को तोड़ना और एकादशी को रखना। तो आप जल का सेवन कर लीजिए, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत वो जल ले लेते हैं और वापस रुकते हैं, और तुरंत दुर्वास मुनि को पता चलता है ये क्या ढोंगी है, तुम्हें उतना संकल्प नहीं, उतना सदाचार नहीं है। एक साधु को घर पे बुलाने के बाद, एक साधु को जब तक भोजन परसते नहीं तब तक तुमने खा लिया, तुमने जल का सेवा कैसे किया तुमने? उतना तुम्हें, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्योंकि वो चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि आई एम प्राइड गोज बिफोर द फॉल। और तुरंत उनके जटों से, उनके जो जटा इसमें से निकाल के एक राक्षस को उत्पादन करते, और वो बोलते इसको मार दो तुरंत। तो तभी अम्बरीश महाराज एक ही जगह पे खड़े होके कृष्णा राखे मारेगे, कृष्णा राखे मारेगे, कृष्णा मारे राखेगे। अगर कृष्ण मुझे बचाना चाहते तो कोई मुझे मार नहीं सकता है, और कृष्ण मुझे मारना चाहते तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं मुझे बचा सकता है। कृष्णा इट इज योर्स। वो शरणागति में भगवान आप चाहते हैं, ये जो भी हो रहा है आपके प्लान से हो रहा है। और तुरंत इतना प्रार्थना से भगवान की शरणागति जाने के बाद आपने सुना होगा सुदर्शन आ जाता है, और सुदर्शन वो राक्षस का तो वध कर ही देता है, पर दुर्वास मुनि के पीछे भागता है। और तभी दुर्वास मुनि सभी त्रिलोक में, ऊपर से नीचे, ब्रह्मा लोक से कैलाश से, सभी जगह पे, सभी मुनियों के अंदर जितना उनका मिस्टिक था सभी जगह यूज करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं है। वो सुदर्शन उनके पीछे भागते रहता है, और लास्ट में देखिए सोच लीजिए, यही मुनि, यहाँ पे प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन भी देता है, द मुनि हैड दैट मच पावर टू एंटर वैकुंठ। वैकुंठ तक पहुंचते हैं और महाविष्णु के चरण में गिर जाते हैं और बोलते कि प्लीज मुझे बचाओ। अभी आपके प्रश्न आ जाएगा, प्रभु जी अब तक आप बोल रहे थे कि भक्तों का दास किए बिना वैकुंठ में एक्सेस नहीं है, अभी ये दुर्वास मुनि जी को कैसे एक्सेस मिला? इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? एक बार हम बोल रहे वैकुंठ के जाने से पहले भगवान का दास के बिना, ये तो एक मिथ्या अहंकारी योगी था और उसको एक्सेस। तो आचार्य लोग बताते हैं एक्चुअली दुर्वास मुनि वाज नॉट अलाउड। दुर्वास मुनि के पास उतना शक्ति नहीं था, पर ये लीला करने के लिए, ये लीला बताने के लिए भगवान ने वैकुंठ पर और दुर्वास मुनि को ओपन कर दिया। व्हाट इज द रीजन? अभी आप सुनिए। उनको कोई एक्सेस नहीं था, उनको कोई, उनके पास उतनी क्षमता नहीं था वैकुंठ में जाओ। पर ये जो अम्बरीश महाराज की लीला करने के लिए भगवान ने वैकुंठ का द्वार ओपन किया, अलाउइंग। कभी कभी बोलते ना कोई दरवाजा, नो यू आर नॉट अलाउड, सेक्रेटरी साहब उधर बात नहीं मुझे जाना है, तो अंदर से जब तक परमिशन नहीं आता है तो कुछ परमिशन खुलता नहीं है दरवाजा। अंदर से कोई दरवाजा खटका, ठीक है उसको अलाउ कर दो, मैं उसको सिखाता हूँ। तो उसी तरह भगवान के मर्सी की वजह से उन्होंने अलाउ, लेट हिम अलाउ, मैं उसको बताता हूँ क्या है, उसको अलाउ। तो वो पास्टाइम करने के लिए दुर्वास मुनि वैकुंठ के अंदर तक गए और भगवान के चरण स्पर्श करके चिल्लाने लगे, भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, ये सुदर्शन मेरे पीछे है। तो बोले क्यों? नहीं वो कैसे भी मैंने कुछ अम्बरीश के लिए अपराध किया था, इससे पर ये सुदर्शन, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए स्वयं विष्णु परम देवोत्तम पुरुष सर्वोत्तम,
जो सबके जिसके हाथों से सुदर्शन निकला था, वो खुद बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा शॉक्ड, क्या ये सुदर्शन तो आपका ही है? आई कांट डू एनीथिंग। तो दुर्वासा बोलते क्या आप निर्दय हो? आपके पास हृदय नहीं है? आप मेरी परेशानी समझ नहीं सकते हो? मेरा पीठ जल रहा है, आप समझ? तो बोले नहीं, मेरे पास हृदय नहीं है। क्या? क्योंकि मैंने मेरा हृदय मेरे भक्तों को दे दिया है। जब मैंने मेरे हृदय को भक्तों को दिया है तो मुझे क्या पता चलता तुम्हारा क्या तकलीफ हो रहा है? बिकॉज यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस टू अ डिवोटी। तुमने एक भक्त के प्रति अपराध किया, देयर इज नो चांस, कोई चांस नहीं है। अगर तुम मेरे पैरों में तले में चिल्लाएंगे आई कैन नॉट फॉरगिव, गो बैक टू अम्बरीश, अम्बरीश के चरणों में पड़ो, तभी तो वो भक्ति ये कर सकते हो। और तुरंत वही दुर्वास मुनि सीधा जाके अम्बरीश उसी जगह पे खड़े थे, प्लीज अम्बरीश प्लीज। और तुरंत देखिए पावर क्या है, द डिवोटी इज समटाइम्स मोर पावरफुल देन द लॉर्ड। स्टॉप, सुदर्शन को बोला स्टॉप, और सुदर्शन वहीं रुक गया। वही विष्णु जब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्त बोले स्टॉप, स्टॉप। भगवान कभी कभी चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे भी पावरफुल होना चाहिए। दिस इज अ सीक्रेट, सेकेंड फॉर्मूला। अगर आप लोग then there's only chance। और लास्ट में आपको एक और एक बता के इस कलयुग में आप में जैसे मैं यहाँ कहानी बताते जाता तो आप लोग पूछ सकते ये तो पुरातन काल की कहानी है, प्रेजेंट में कोई है क्या? ये पहले पुरानी दादा दादी की कहानी बोल क्या, प्रेजेंट में कोई है क्या? तो प्रेजेंट में है, कौन है? प्रेजेंट में कौन है? Who is more powerful than the Lord? बोलिए आप लोग के मुख से, Who is more powerful? जो भगवान भी नहीं कर पाए उन्होंने एक शुद्ध भक्ति ने किया था। टेल मी हु इज इट? कौन है जो भगवान ने जो कर नहीं कर पाए, बोलते आई कैन नॉट डू, मोरा सेनापति लिखता हूं। हु इज इट? प्रभुपाद। पृथ्वी देयाचयात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव नाम। ये स्टेटमेंट चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। पृथ्वी देयाचयात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव नाम। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण को भी उनके कॉम्बिनेशन है। भगवान चाहते तो वो नहीं कर पाते थे, वो कर सकते थे, वो कर सकते थे, he could do, और he wanted मुझसे भी पावरफुल इज माय डिवोटी। मेरा भक्त मेरा मैसेज को लेके जाएगा, he will take my message to propagate this message। पृथ्वी देयाचयात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव नाम। और वही है श्रील प्रभुपाद। इसके पीछे देखिए इतने सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य थे, भगवान ने प्रभुपाद को क्यों सिलेक्ट किया? इसके पीछे कहानी है। जब यही प्रभुपाद एक समय के बाद ये उनके गुरु भाई बताए थे, गुरु भाई लोग ने बताया था ये कहानी। इट वॉज इन द ईयर समथिंग 1955 के बाद एक दिन ये उनका उस समय उन्होंने मानव प्रस्ताव ले चुके थे। और एक दिन अभय भक्तिवेदांत स्वामी बैठ के जाप कर रहे थे और नीचे सीढ़ी के पास उनके दो गुरु भाई ये स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, पृथ्वी देयाचयात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव नाम। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे मेरा नाम प्रचार होएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? यहां से तो लोग कोई इंग्लैंड बाहर के समुद्र के उस तरफ को लोगों को पता भी नहीं है कौन चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन कृष्ण कौन है, ये कैसा होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने बोल के ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई आने वाला है,
कोई आया। तो तभी ये दोनों लोग सोच रहे थे कौन है वो व्यक्ति, कौन आएगा। ये व्हाई द स्टेटमेंट इज स्टेट, भगवान ने बोला तो 110% होना ही चाहिए, पर अब तक तो कौन हो सकता है और कभी होने वाला है। तो तभी ऊपर से एक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नीचे उतरते हैं। तब और उतरने के बाद बोलते वो सुन रहे थे इनका कॉन्वर्सेशन और बोलते क्या हुआ। बोलते स्वामी महाराज इसमें लिखा है पृथ्वी इतिहास नगराधिगम सर्वत्र प्रचार हुए, ये कैसा होने वाला है। लोगों को तो पता है भी नहीं, और कौन है वो व्यक्ति जो करने वाला है। तो प्रभुपाद आगे बोले है वो व्यक्ति। बोले कौन। तुम लोग दोनों में नहीं है, तुम लोग दोनों उल्टा तो श्योर है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति को गुरु की आज्ञा में संपूर्ण विश्वास है और हरिनाम में विश्वास है, वो व्यक्ति लेके जाएगा ये मैसेज। वही व्यक्ति इस पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने वाला है। देखिए ये फेथ, ये विश्वास प्रभुपाद के पास था। दिस वॉज अ क्वालिफिकेशन। भक्ति नाही वेदा नाही नामे को बेदारू, भक्ति वेदांत स्वामी। When he says, I don't know the words, but उसमें एक मार्गिनी भागवत में प्रभुपाद बताते हैं कि मुझे कंप्लीट विश्वास है कि मेरे गुरु की जो आज्ञा और हरिनाम, ये दो चीज बहुत पावरफुल है। मेरे पास नाम बड़ा नाम है पर मेरे पास कोई योग्यता नहीं, but I have got complete faith in the instruction of my spiritual master। ये मेरे पास कंप्लीट विश्वास है, मुझे उनकी आज्ञा के ऊपर उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे विश्वास है कि मैं एक कठपुतली हूं, मैं कठपुतली के जैसे हो। नाचाओ से मुझे नाचाओ से मत, भगवान मुझे नाचाओ, मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं। ये विश्वास की वजह से प्रभुपाद जस्ट वेंट टू टॉमकिंसन स्क्वायर बार, और वही टॉमकिंसन स्क्वायर जस्ट चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, और दम के साथ उन्हें सिर्फ बजाने लगे, क्योंकि उनके पास संपूर्ण विश्वास था। उसकी वजह से पृथ्वी त्याज्य नगर आदि गांव सर्वत्र प्रचार हुए थे मोरना। देखिए भगवान चाहते थे, पर he wanted to do to a pure devotee of the Lord. Why? Because the Lord wants to show that my devotee is more powerful than the Lord. मेरा भक्त मुझसे भी पावरफुल है। इसलिए ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है। अगर हमारे जीवन में भक्ति में प्रगति करना है और भगवान कृष्ण का दर्शन लेना है, तो डोंट एस्पायर टू सी गॉड, सर्व इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। और वो कभी होगा, आप ऐसा सेवा करो कि भगवान चाहते हैं आपको देखने के लिए, और भगवान कभी चाहते जब आप भक्तों का भक्त बनते हैं। When you always want to be the humble servant sincerely, then Lord wants to see you. हम कभी कभी चाहते हैं डायरेक्टली ओके सी भगवान का दर्शन लिया मैं एरिया, पर फर्स्ट क्वेश्चन है भगवान चाहते थे तुम्हें देखने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें प्रधानमंत्री को देखने से इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री को देखना, वो देखना चाहते क्या, उनका अपॉइंटमेंट मोर इम्पोर्टेंट है। मैं प्रधानमंत्री को चाहता हूं, पर आपका जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको जानते क्या, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए सीक्रेट फॉर्मूला है, मोसा ना पतिता प्रभु ना पाई गया। इसलिए ऑलवेज गिव अदर्स, यू गो हेड, यू गो हेड। ये गोलोक का मूड है, गोलोक वृंदावन का मूड ये है। वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हो, हम जाना चाहते हैं, तो हमें पहले हमारा नेचर को चेंज करना पड़ता है। वहां पे ये मिथ्या अहंकार के साथ जाए तो तुरंत आउट, दुर्वास मुनि के साथ ओके आउट, जाने के बाद वी विल नॉट फील आवरसेल्फ, क्योंकि पहला बात तो इंटरेस्ट भी नहीं है, पर यू हैव टू डेवलप दैट मूड दासोसली। इसलिए एक वर्ष है श्रीमद् भागवत में, ये भक्ति रसामृत महाराज ये श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छा, इनके ऊपर चर्चा है। ये तो कवर्ड वॉइस आप जानते हैं ना, ग्वाले 10वें स्कंद में आता है, उसमें एक श्लोक आता है,
भगवान के आगे अभी हमें एक श्लोक बोल के समाप्त कर। उसमें एक श्लोक है, उसमें बताते यदि दूर कथा कृष्ण वनशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संक्षिप्त रे निरे। सभी जब भगवान कृष्ण बलराम जब इसमें वृंदावन में अपने जो जंगल में जा रहे थे और सभी ग्वालियों के पीछे भाग रहे थे, तो तभी सभी ग्वाल श्रीदामा सुबल मधुमंगल ये सब उन लोग पीछे भागते और सब लोग क्या बोलते अहम पूर्वम इति संक्षिप्त रे मेरे बोलते अहम पूर्वम, आई विल टच कृष्णा फर्स्ट। अभी आपने बोला कि वन शुड ऑलवेज बी द लास्ट, या आई टच कृष्णा फर्स्ट, हाउ इज इट पॉसिबल? इसलिए देखिए कभी भी ना ये श्लोक पढ़ने से हमें पता है उसका तात्पर्य पढ़ना चाहिए। What does the Acharya say about it? अहम पूर्वम इति संक्षिप्त रे मेरे। उन लोग ये जब भाग रहे हैं बोले आई टच कृष्णा फर्स्ट, आई टच, बट बैक ऑफ द थॉट इज दैट मैं ज्यादा फास्ट भागूंगा तो दूसरे ग्वाला मुझसे भी फास्ट भाग, मैं चाहता हूं कि ये शुड टच कृष्णा फर्स्ट। हेल्दी कंपटीशन। अगर मैं बराबर से सिंसियरली जाप करूंगा तो मेरे बाकी बाजू में देखें अरे यहाँ से इतना सिंसियर है, he is chanting so sincerely, you are inspiring others to chant sincerely। अगर आप भागवतम भगवद गीता you are hearing with the rapt attention, जब आप एकदम ध्यान प्रस्तुत है तो बाकी लोग अरे hearing so sincerely, you are inspiring others, you should also hear sincerely। It is a healthy competition। कोई गोलोक में ये नहीं चाहता है कि मैं भगवान को मैं बोल रहा हूं अहम पूर्वम, पर मैं ये चाहता हूं कि बाकी लोग कृष्ण को पहले टच करना चाहिए। दिस इज द मूड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए भक्ति में इसका मतलब हम पीछे रहे तो हम जाम छोड़े, नो, प्रीच बाय योर एक्शन। आप अपने जीवन में, खुद की जीवन में, नो नीड ऑफ प्रीचिंग अदर्स, खुद ही कितने सिंसियर हो, आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साधना, उसकी आचार, उसके लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि यू शुड सी ही इज वेरी सिंसियर इन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि बाकी लोग, इसलिए नहीं कि हमें प्रशंसा मिले, बट अदर्स बिकम मोर इंस्पायर्ड टू टेक टू कृष्ण। ये हमारा मोड होना चाहिए। तो ये गोलोक वृंदावन का मोड है। इफ इट इज डेवलप्ड नाउ दासोसी करके, then we will be having easy answers। ये secret formula है। To become the servant of God, you try to become the servant of the devotees of the Lord, then your life is successful। The doors of gold, महत् सेवद्वारम भूरि मुक्ते, भगवान का जो द्वार है वो खुल जाए। तो अभी हमारे पिता मुनिव्यास भगवान दामोदर अभी दरवाजा बंद करने से let us to pray that my Lord, भगवान आप ये जीवन में मुझे अवसर दिए हैं, आपको ये दीप ऑफर करना, पता नहीं वापस ये समय मिलेगा या वापस ये अवसर मिलेगा। लेट मी ऑफर उनका हार्ट फेल्ट कंटेंट, मैं हृदय पूर्वक आपको अर्पण करता हूँ। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए एक दीप आप स्वीकार कीजिए, पता नहीं कभी मेरा दीप स्वीकार होगा। विद दैट मूड भक्तों के द्वारा जब हम प्रार्थना करके ऑफर करेंगे, भगवान वो दीप को स्वीकार करेंगे। ये विनम्रता इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? वेरी गुड, we understood the essence, no further, all doubts clear। आपको सभी किसी का भी कोई है तो आप बोल सकते हैं, और आपकी प्रार्थना से हम कुछ बोले। अभी हम किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो we'll start now। It is last सुरवर प्रभु और सभी भक्तों का वो चाहते हैं कि, क्योंकि कभी कभी बोलते ना
जो डिसीज्ड पर्सन को कभी कभी डॉक्टर ज्यादा एंटीबायोटिक्स आई एम इन मोर डिसीज्ड कंडीशन, वो चाहते कि आप शुद्धिकरण के लिए आप गाइएगा क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है। सो कंसिडरिंग इन दैट मोड आई डू दिस सर्विस। महान सेवा